Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize, and this is the last revision video of maths which has a week 4 content. So let's begin. So here we will be discussing about the polynomials and precisely about the quadratic equation. Now I hope you already know that the quadratic is also a part of a polynomial, right? Okay. So a quadratic function can be described as ax square plus bx plus c. ये एक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक क्यों बोला है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 है. So the curve representing any quadratic function is always a parabola. क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोलिक होता है और पैराबोला ऐसा दिखता है. इन केस यू डोंट नो, सो इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस. तो या तो फिर आप स्माइल करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सैड होता है. ओके, सो इट हैज टू फेसेस. नाउ द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ पैराबोला इज, तो देखो यार ये मेरा पैराबोला है, तो ये वाला जो एक्सिस है ना, ये देखो पैराबोला को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है. एंड यहाँ अगर आप नोटिस करोगे, सो दिस लाइन विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. देयरफॉर इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी x इज इक्वल्स टू, x क्यों आया क्योंकि y, any line that is parallel to y axis has x coordinate fixed. तो इसकी जो लाइन होगी दैट विल बी माइनस बी बाई 2a. अब यार ये जो लाइन होती है ना, ये जो axis of symmetry होती है, it always have the vertex. Now this vertex can be minimum if we have the smiling face or the maximum if we have the sad face. So the coordinate or the x coordinate of the vertex is also minus b by 2a. Logically I'm saying, right? Okay. Now a parabola can be upward, can be downward, but how to define it or how to judge it? So we judge it by the coefficient of x square. So if it is positive, we have smiling face. If it is negative, we have sad face. For the quadratic function ax square plus bx plus c, how can we write the slope? यार अब slope हम किसी भी function का लिखते हैं ना. Now this is not particularly for the quadratic function. It can be for any polynomial. Okay. So for example, this is the function I have and I want to write the slope out of it. तो यार एक ना पहले आप मुझे डायग्राम देख के बताओ, क्या इसकी स्लोप सेम होगी? No. Like slope is actually different on different points. Therefore यहाँ हम directly 2-point form से नहीं निकाल सकते. It is only possible in the linear equation or the linear function. इसमें क्या करते हैं, स्लोप का एक सिंपल सा फंडा तो हमें आता है, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. बट क्योंकि हम इतनी दूर दूर दो अलग अलग पॉइंट नहीं ले सकते, हम इन दोनों पॉइंट को बहुत पास लेंगे सो दैट हमारा जो स्लोप है वो बहुत ही प्रिसाइज है. और हम इतने छोटे एलिमेंट्स ले रहे हैं कि मुझे डेल्टा y की जगह dy लिखना चाहिए और डेल्टा x की जगह dx मिलना चाहिए. और यार आप इससे तो फैमिलियर होंगे ही, दिस इज नोन एज द डिफरेंशिएशन. तो अगर आपको इस इक्वेशन की या इस फंक्शन का स्लोप निकालना है, सो ऑल यू नीड टू डू इज डिफरेंशिएट इट. तो इसे जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगी, आई विल गेट 2ax प्लस b एंड दिस इज द स्लोप. एंड डू नोट that the slope is different for different values of x, जो कि हमने ग्राफ से ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था. That slope is not a constant in case of quadratic equation. अब हमें यहाँ slope calculate करनी आ गई, तो क्या हम tangent बता सकते हैं? So what do we mean by tangent? So tangent of a curve, not precisely to be a parabola, it is for the ellipse, hyperbola, सबके लिए tangent की definition same है. So for example, this is my curve. So tangent is a straight line that cuts the curve at only one point. So this is not a tangent because it's cutting at the 2 point. This is the tangent. ये एक ही point पे cut कर रही है. और for example मुझे ना ये point given है. तो क्या मैं इस equation को लिख सकती हूँ, इस line की equation को? Yes, I can write easily by the slope point form. So I know the formula, that is y minus y naught is equals to m x minus x naught. Now I have been given x naught as x1 and y naught as f of x1. So
Now instead of m, what I have to write is slope, and slope at x1 is 2ax1 plus b. Okay, so I hope you know how to calculate the slope and the equation of tangent at any given particular point. Okay, now this is the figure for the same, like if we have a positive smile, if we have a negative sad. अब हमने quadratic function की बात कर ली. Let's talk about quadratic equation. Equation word आते ही equal to picture में आ चुका है. So ax square plus bx plus c is the function, but equal to some another constant is the equation. And if I'm taking this constant as 0, this is known as the standard form. Okay. So I hope now you know that what is quadratic equation and what when we say that quadratic equation is in the standard form. When we are equating the function equal to 0. यार अब इस इक्वेशन के मुझे रूट्स निकालने हैं. रूट्स मतलब कि सोल्यूशन. तो रूट्स या सोल्यूशन निकालने का इजी तरीका होता है जीरोस निकाल लो. व्हाट डू वी मीन बाय जीरो? जीरो मतलब कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x की वो वाली वैल्यूज निकालो जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 के बराबर हो जाएगा. So the values of x for which the function becomes 0 are known as the zeros of the function. अब क्योंकि ये quadratic equation है, the maximum power or the degree is 2. Therefore, the maximum roots or the maximum zeros which I can have are 2. Although I can have 0 roots, 1 root, but the maximum has to be 2. I can't exceed more than 2. Okay. Now, I hope it's clear that what is function and what is quadratic equation. Now let's understand how to calculate or how to make the graph out of it. Okay, let's get started with it. So how to draw the graph of a quadratic equation? 4 steps to follow. First step. First, judge the coefficient of x square. If a is positive, यह upward होगा. If a is negative, downward होगा. So this is the first thing which you need to understand before drawing the graph. Second step, calculate the vertex. Vertex को कैसे calculate करेंगे? उसका x कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताई रखा है, that is minus b by 2a. तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? फंक्शन में minus b by 2a put कर दो, you will get the y coordinate. So you can calculate the vertex. So the second thing is calculate the vertex. Third step is check the discriminant. Discriminant मतलब b square minus 4ac. यार अब आप सोच रहे होंगे कि मैं b square minus 4ac क्यों ले रही हूँ, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? तो यार पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देती हूँ, that the roots or zeros of quadratic equation, जिसे मैं a, b लिख सकती हूँ, if a and b are the roots, they will be written as minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. तो यार ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ये फॉर्मूला देके गए थे. ऑब्वियसली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है इस फॉर्मेट में. So you know the values of a, b and c. Just put those values in this equation. एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, and you will get a and b. Or you will get the two roots of the equation. अब मुझे ये बताओ, अंडर रूट में क्या नेगेटिव पॉसिबल है? आंसर इज नो. देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे मैं d से रिप्रेजेंट करती हूँ, क्या बोलती हूँ मैं इसे? डिस्क्रिमिनेंट. अगर ये मेरा नेगेटिव आता है तो यार मेरे रूट्स हैं ही नहीं. तो इस केस में मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. अब अगर मेरा ये जो d है ये 0 के बराबर हो गया, तो आप बताओ क्या होगा? अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये गायब हो जाएगा. तो यार मेरा a भी माइनस बी बाई 2 है और मेरा b भी माइनस बी बाई 2a है. Therefore I have the same value of both the roots. तो इस केस में I have one root. Basically two roots होते हैं, but these two roots are same. तो अब इस केस में जो मेरा ग्राफ बनेगा, it will be touching the x-axis at only one point. Getting it? Now the final case is जब मेरा b square minus 4ac पॉजिटिव होगा, अंडर रूट में पॉजिटिव टर्म है, बिंगो, we have
टू रूट्स एंड दैट टू डिस्टिंक्ट। तो इसमें जो अपन नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखते हैं ना ग्राफ, वो बनेंगे. So it will be cutting the x-axis at two different points. Clear? So this is the complete paragraph. Pause the video if you want. You can read it aloud. So these are the steps. Judge the coefficient of x square, calculate the vertex, and then calculate the discriminant to make the rough diagram of your quadratic equation. Now if you want to be more precise, that means कि यार हम इतना ग्राफ बना चुके हैं कि आई नो कि ये अपवर्ड है, ठीक है. इसका ये जो वर्टेक्स है, आई नो दैट दिस इज ए कॉमा बी, देयरफॉर जो मेरे रूट्स हैं, ठीक है, वो ए से एक छोटा होगा और एक ए से बड़ा होगा. आई नो दिस थिंग. And okay, and I know that I have two roots, like इन तीनों पॉइंट को जज करके I make the rough diagram. But what if I want to know कि यार मुझे तो ये और ये वाला पॉइंट भी जानना है, मतलब कि मुझे दोनों रूट्स भी जानना है. So to know the roots, यार अब इतना तो शॉर्टकट नहीं होगा. You need to solve it by using the factorization method. Although we have two more methods, but ट्रस्ट मी, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपके सारे काम हो जाएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इट इज द बेस्ट एंड इट इज द इजीएस्ट एज वेल. ठीक है ना. सो फर्स्ट स्टेप अगेन आई एम राइटिंग देम. ए जज करो. ए से ये पता चलेगा अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. वर्टेक्स कैलकुलेट करो. माइनस बी बाई टू ए इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स. देन डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो टू अंडरस्टैंड कि आपके पास 0 रूट्स है, 1 रूट है और two distinct roots हैं. And then finally find out the roots or do the factorization. 4 steps to draw the graph perfectly and 3 steps to make the graph roughly. काफी question आपके इन 3 steps से भी हो जाते हैं. So be active when you are giving the paper. So this is the graph which we got. Now what conclusions we can make out of it? तो यार ये कंक्लूजन्स आर जस्ट दी अनदर वे टू लेट यू नो कि आप ग्राफ देख तो पा रहे हो ना. तो यार अब आप ही मुझे बताओ मैं सही बोल रही हूँ या नहीं. फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 8 टू इन्फिनिटी आई हैव फंक्शन पॉजिटिव. ट्रू. फ्रॉम -2 to 8 I have function negative. Again true. And this is what my option A is saying. अब सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, that the function fx has the range -25 to infinity. तो यार रेंज कैसे निकालते हैं, ये तो भी मैंने बात की थी डोमेन्स की. रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज इज ऑफ fx and fx is equals to y. therefore I am talking about the range of y axis. तो मेरा y axis कितना कवर हुआ है, it is covering from -25 to infinity all the points. So my range is -25 to infinity. Okay. So again another example have been given to make you familiar with the factorization method and how to make the graph easily. And again the conclusions have been given for the same. Now how to find the equation of a parabola. We understood how to make or draw the parabola. Now how to find the equation of parabola. Now please make a note. I am saying something. Okay. Now यार मुझे पता है ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, राइट. मुझे ए से पता चल रहा है मेरा ऊपर है या नीचे है मेरा पैराबोला. मैं वर्टेक्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं डी कैलकुलेट कर सकती हूँ और मैं फैक्टराइजेशन से मेरे रूट्स भी कैलकुलेट कर सकती हूँ. इन चारों की मदद से मैं एक ग्राफ बना सकती हूँ. तो यार क्या आप मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा एक ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, इसका रूट है -2, 2. तो क्या इस ग्राफ को देख के आप मुझे बता सकते हो ए क्या था. क्योंकि ये अपवर्ड है तो मेरा ए पॉजिटिव होगा. मेरा वर्टेक्स भी ऑब्वियसली गिवन होगा ग्राफ में. फॉर एग्जांपल दिस इज -2, 0, -2. तो मेरा वर्टेक्स हो जाएगा 0, -2. मेरा डी पॉजिटिव होगा. वाई? बिकॉज आई हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स. और फैक्टराइजेशन में मेरा क्या हो जाएगा, एक एक्स की वैल्यू -2 आई है और एक 2 आई है. तो यार जो 4 चीजों से मैं ग्राफ बना रही थी वही 4 चीजों से मैं मिलके आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ. एंड एज सून एज आई गेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑल आई हैव टू डू इज x minus a, x minus b. This will be the formula in which I have to put the values of root to get the equation.
इजी. नाउ दिस इज वेरी इजी, लाइक बिल्कुल बच्चों वाली लॉजिकल बातें हो रही हैं. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन से पहले दो नोट है यार, इनको ध्यान में रखना. अब मुझे ये बताओ, अगर मेरा पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, अगर मेरा पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0,0 विल सेटिस्फाई इट. तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो हुई और एक्स की वैल्यूज भी जीरो हुई. तो मेरी जो सी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है. Therefore, if the parabola is passing through the origin, I can say that c will be zero. Therefore, अब जो मुझे एफ एक्स की वैल्यू, लाइक मुझे इक्वेशन निकालना है ना, एंड इक्वेशन इज व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो मुझे ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बट अगर मेरा पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है तो मेरी सी की वैल्यू तो जीरो ही होगी. So all I need to do is find out A and B. Okay, so this is first note. Second note, for example, मेरा एक पैराबोला है एंड उसकी सिमेट्री की जो लाइन है ना वो y एक्सिस खुद है. y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन नहीं है, y एक्सिस खुद है. तो अगर y एक्सिस खुद है तो यार मुझे पता है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज जीरो. बट मुझे ये भी पता है कि लाइक यहाँ वर्टेक्स लाई करेगा और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -v/2a which is zero in the case where y-axis is itself the axis of symmetry. तो यार मेरी b की वैल्यू जीरो आ जाएगी. a को जीरो मत मान लेना, we never do denominator as zero. ओके ना, फाइन. सो इफ इट्स गिवन कि y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो यार b को जीरो मानो. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड a एंड c टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब एक एग्जांपल कर लेते हैं. तो एग्जांपल में क्या दे रखा है, हमें एक गेटवे दे रखा है. सो दिस इज अ गेटवे, ठीक है, ये हाईवे है बेसिकली, इसके अंदर से गाड़ियां घुस सकती हैं. सो दिस इज अ गेटवे जिसकी विड्थ दे रखी है 10 और मैक्सिमम हाइट दे रखी है 5. अब मुझे बोला गया है कि एक ट्रक है जो कि बिल्कुल बीच से 4 मीटर का विड्थ है, उसका बिल्कुल बीच से निकल रहा है. तो उस ट्रक की मैक्सिमम कितनी हाइट हो सकती है जिसकी वजह से वो गेटवे से पास हो जाए. क्योंकि यार आप खुद ही बताओ, अगर उसकी हाइट 5 है तो यार 5 तो कैसे ही घुसेगा ट्रक, या 6 है तो वो नहीं घुस पाएगा ना. तो मैक्सिमम कौन सी हाइट है ट्रक की जहां पे वो इस गेटवे को पास कर देगा. एंड यार ये यूनिफॉर्म हाइट है हर जगह से, कम कम छोटी ऐसा कुछ भी नहीं है. तो पहली चीज मैं इसे मान लेती हूँ कि ये मेरा y एक्सिस है. आई एम अज्यूमिंग इट टू बी y एक्सिस टू मेक माई कैलकुलेशंस इजियर. तो यार ये वाला पॉइंट जो है दैट विल बी माई 0,0, राइट. नाउ ओके, नाउ लेट्स डू इट. सो दिस पॉइंट इज, ये 10 है, ये पूरा 10 है, यहाँ 0 0 मान लिया बीच में, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,5 एंड ये जो मेरी वर्टेक्स है दैट विल बी 0,5. So this is actually -5,0. Sorry for the minute mistake. So these are the points which I am easy to identify. All you need to do is I have ax square plus bx plus c is equals to fx. So this is the function of the parabola. अब यहाँ पे यार c की वैल्यू जीरो होगी. Why? Because I am considering that this parabola is passing through the origin. Actually, no. No. This is not passing through the origin. I am really sorry. अगर ये pass करता तो देखो यार ऐसा diagram बनता. So this is not passing through the origin, but y-axis is the axis of symmetry. So I can say that my b will be 0. So now all I need to find out is a and c to get the function. और जैसे ही मुझे function मिलेगा, आगे समझो. सो नाउ आई हैव अ ट्रक जिसकी 4 मीटर विड्थ है लेकिन वो बीचों बीच से निकल रहा है. तो यार यहाँ 2 मीटर होगा ट्रक का और यहाँ 2 मीटर होगा ट्रक का, ठीक है. और ये ट्रक की मैक्सिमम हाइट पॉसिबल है जिससे वो इस गेटवे से निकल सकता है. तो मुझे यार ये पॉइंट निकालना है. क्यों? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है. अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी और ये हाइट ही मैक्सिमम हाइट होगी ट्रक की. इजी. अब अगर मुझे पैराबोला का ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना है तो मुझे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो इक्वेशन मेरी अभी पैराबोला की ये है, राइट, जिसको मैं a और c इजीली फाइंड आउट कर लूंगी बाय सैटिस्फाइंग दीज 3 पॉइंट. तो जैसे मैं इन 3 पॉइंट को सैटिस्फाई करती हूँ, दिस इज द फंक्शन आई विल गेट.
अब इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ, सी, so what I will get 5 minus 4 by 5, that is 4.2. So this is the maximum height of the truck which can pass through the gateway. Easy. Now let's recap very fast that the things you need to remember कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यार हम स्क्वायरिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम व्हाट वी विल बी यूजिंग इज फैक्टराइजेशन मेथड. डोंट वरी, मैंने स्क्वायरिंग मेथड अभी कवर नहीं किया है, ये रिविजन वीडियो है तो इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करेंगे. और फैक्टराइजेशन मेथड की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है ना. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड, बस थोड़ी सी तारीफ कर दी गई है. अब ये स्क्वायरिंग मेथड हमें नहीं करनी चाहिए अगर रूट्स रियल नहीं है. स्क्वायरिंग मेथड हमें करनी ही नहीं है, तो इस वाले पॉइंट का भी कोई नीड नहीं है. Now, it's really mandatory to think which one is the better root among the two roots of the quadratic equation. तो यार ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फंक्शन दिया गया था कि दैट फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग मी द नंबर ऑफ बुक. अब उस फंक्शन के दो रूट्स आए, मेरे पास एक आया 4 और एक आया माइनस का 5. तो यार नंबर ऑफ बुक नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसे आप डिस्कार्ड कर दो और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4. सो नंबर ऑफ बुक्स विच वी हैव इज इक्वल्स टू 4. सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस पूछ रही हूँ या एज पूछ रही हूँ, तो दीज things are not accepted in negative solution, so you need to discard the negative solution and accept the positive one. So be active in while doing the questions. Okay, now E point is telling you the importance of discriminant, that is D, which is equals to B square minus 4AC. Now this is hell important. Why? Because you can actually find out that whether you have the real roots or not, and if you have the real roots, whether you have only one root like common root or the distinct roots. So you can comment a lot on roots just by calculating B square minus 4AC, right? Okay, now that's all in this video and in week 4. Thank you so much for watching and I hope आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए. All the best from Summarize and Memorize. Keep summarizing and keep memorizing with us.